Namaste, students. Namaste, ma'am. Please on your cameras, all of you. Write down your attendance in the chat box so that I can mark your attendance, please. Sanjeev, Suman, Shalu. Yes, ma'am. Please kindly mention the subject also. Please. Shalu, mute yourself. Yes, ma'am. Please write down your attendance in the chat box so that I can mark your attendance, all of you. Along with the subject itself. Am I audible to you, all of you? Yes, Suman? ma'am. So please write down your attendance in the chat box. Along with that, write down the subject also, Momita. Subject in the sense, it is EVS class, so please mention EVS class so that I can count it in under this, okay? So meantime, we will start discussing. Yesterday we were discussing about the environment and what are the different components of environment, that is abiotic and biotic, right? Right, ma'am. Okay. So when we are talking about the, is that concept is clear with you? What is biotic? What is abiotic? Is it clear, Nisha? Suman? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Please welcome. Who is? Please mute yourself. It is disturbing. Okay, thank you. So when we are talking about the biotic and the abiotic aspects, okay. So this is the main basic components of a ecosystem. That means when we are saying the ecosystem, that is the living organism, how they interact with the surrounding, right? So definitely it is not only the living organism. The living organism is interacting with the environment, okay. So in the environment you can see both your living aspect and the non-living aspect. So living things are not separate from non-living things. You cannot separate them. If air is absent, is air is abiotic, but abiotic you cannot remove from the environment, right? And if you are removing it from the environment, the sustainability of the living organism is zero. Do you agree with that? Yes or no? Yes. So when we are saying the relationship between the biotic and the abiotic in a given environment, then it is a ecosystem, right? किसी भी समावेश में अगर आप देखोगे पर्यावरण में अगर आपका कोई भी प्राणी है तो उस प्राणी को आपको वायु चाहिए, जल चाहिए, राइट? इट नीड एवरीथिंग. और उनका जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मे नॉट बी द सिंगल साइडेड, राइट? वन एक तरह का तो इंटरेक्शन नहीं हुआ, ठीक है आपने पानी दे दिया,
आपने बाकी सर्कमस्टेंसेस और सोर्सेस बंद कर दिए तो क्या लाइफ एग्जिस्टेंस करेगी निशा? No, ma'am. So right interaction has to be there. So nature has its own balance कि वो बैलेंस कैसे कर रहा है, right? जिसमें कि एक आप देखोगे कैसे पेड़ आके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं या ले रहे हैं या रिलीज करते हैं? रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैंने क्या पूछा? मैम प्लांट लेते हैं, डाइऑक्साइड लेते हैं या रिलीज करते हैं? लेते हैं मैम, लेते हैं मैम। लेते हैं। That means हाँ, that the animal you are having ki animal parts se please on your videos each and everyone, please, all of you, I would like to see the live class only, and those who are screen is off means it is considered they are absent from the class. I will not mark attendance unless until the screen is on. So it's a humble request, please kindly on your screens, and you should be with the proper dressing while you are taking the class. It's a humble request, please. ठीक है? तो जब हम इंटरेक्शन बोल रहे हैं तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत जरूरी है, राइट? इन अ पॉजिटिव वे। तो बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है। तब जब हम बायोटिक की बात कर रहे हैं तो बायोटिक में हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल, राइट? हमने डिफरेंट लेवल देखा था, जैसे कि प्राइम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है निशा? ओके सुमन? प्लांट्स मैम, प्लांट्स। प्लांट्स है, ओके। और किरण? मोनिका? Once you speak out, please mute yourself as soon as so it will not disturb the class, please. Kiran? Kiran? Okay. Monica, I think Monica, then comes your Kiran. Producers who are considered Sharma. Meenakshi? Whom you Yes, consider ma'am. as a producer in an ecosystem? Yeah. Okay, we'll be back. Okay. Shireen? You're now connected to Boat Party, pal. Okay. Kiran Yogi. Please write down your attendance in the chat box so that I can note it down, please. Yesterday, I have given you a few assignments. I would like to see. By the meantime, you can add on your attendance, please. Meenakshi, please mute yourself. How many of you done the yesterday's task? Raise your hand. Okay, Gautam. Is it Gautam? Yes, ma'am. Okay. Please, first question. What was the first? Huh, ma'am? Kindly will you speak out the first question?
What was the first question? What is primary producer, ma'am? Yes. No. Yesterday's task assignment. Yesterday I have given you assignment, I think. Yeah. What ecosystem is around, ma'am? Yes. Ma'am, 2 or 3 primary producer. Okay. Okay. What is the answer? Ma'am, primary producer are organism that acquire their living. Shalu, please mute yourself. Mute Yes, yourself. ma'am. Mute yourself. Yes, ma'am. Mute yourself. Please आप अपना mic बंद कीजिए. Yeah. Yeah, please, Gautam. Primary producer are organism that acquire their energy from sunlight and materials from non-living sources. Hmm. Second question. 2 or 3 primary producer, ma'am. Example. Okay. Sushma. Sushma. Yes, ma'am. So have you completed the assignment? Yes, ma'am. Okay. I would like to know. मैम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपने बोला था कि पता करना है इनके बारे में और डिफरेंट फूड चेन्स बोला था आपने कौन से एनवायरनमेंट में कौन सी होगी. Okay. So what is Yes, primary? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर दोज जो खुद का खाना खुद से बनाए इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज करके. Okay. Inorganic sources को use करके. यस मैम. What do you mean by inorganic source? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो ये ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं इनके अलावा जो भी होंगे उनको कंज्यूम करके ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे. You're getting into the complex part, right? Okay. जब हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, when you say producers, that means those who produce their own food, right? They are Yes, ma'am. autotrophic in nature. ठीक है, autotrophic in nature जब हम बोलते हैं autotrophic, तो please on your cameras, all of you. I think 14 connectivity is there. I would like to see everyone in a active mode with your copy pen and notebook and write down the assignment at the meantime. Whatever we are discussing, please write down at the same time. Okay. So all have to be alert. After lunch, it is a high peak time. I can understand, but be in a proper uniform like dressing. Okay. ठीक है. So जब हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं जो एनीथिंग विच प्रोड्यूस इटसेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इकोसिस्टम में देख रहे हैं वी आर सीइंग द पार्ट दैट इज योर लिविंग, राइट. तो प्लांट कैसे आपने देखा होगा प्लांट को कोई पत्ते तो लगा नहीं रहे जाके, ऐसा है नहीं. आपने ऐसे देखा है कि आप जाके लीफ लगा रहे हो या फ्लावर उसमें जाके लगा रहे हैं? नो, नहीं. That means they prepare their own food by the process using photosynthesis के process के through वो अपना food prepare कर रहे हैं, right? Yes. तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? They are converting the light energy into chemical energy. जो सूर्य की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी में, जिससे कि आके वो अपने बायोकेमिकल सिंथेसाइज कर सके प्रॉपरली, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. तो ये पूरे प्रोसेस में दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, ठीक है. तो यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर में रख रहे हैं या प्रोड्यूसर में रख रहे हैं. गॉट द पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल?
यस मैम। ओके, तो जब हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बारे में आता है आपका क्या आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स मैम। प्राइमरी कंज्यूमर्स, वेरी गुड। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, कौन हो सकते हैं? हार्बीवोर मैम। हर्बीवोरस, ओके। हर्बीवोरस जो हो सकते हैं, अब हम इसको थोड़ा, जब आपने हर्बीवोरस बोला, लेट मी नो कि ये चीज, क्योंकि टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही है, जो साइंस के बच्चे हैं दे कैन ग्रास्प इट वेरी इजीली, आई कैन अंडरस्टैंड, बट दोज हु आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड, राइट, जिनके एजुकेशन या दूसरे बैकग्राउंड से, मैं उनसे ज्यादा एम्फोसाइज करना चाहूंगी कि उन्हें भी अंडरस्टैंडिंग बराबर आए, ठीक है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड इज नील ऑन दैट पार्ट, ठीक है। गौतम, तो व्हाट डू यू मीन बाय हर्बीवोरस? जैसे सुषमा ने बोला हर्बीवोरस, do you have any idea about that? मैम जो अपना भोजन केवल प्लांट्स से ही प्राप्त करते हैं। प्लांट से ही प्राप्त करते हैं, ओके। हर्ब्स का मतलब है छोटे पौधे, ठीक है, जो छोटे साइज में होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं, और जो उनको खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं, या जो उन पे फीड करते हैं, ठीक है। तो जो उन प्लांट्स पे बेस्ड है, जिसकी लाइफ साइकिल या फीड करने के लिए वो प्लांट के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है, तो उसे हम हर्बीवोरस बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोला? एनीवन हैविंग आइडिया कि हमने यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैम शाकाहारी है, ये खुद का कर लेते हैं। यस, ओके। तो जब हम फर्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, जो फर्स्ट स्ट्रेटा है वो क्या कर रहा है? फॉर एग्जांपल आपके गोट इज फीडिंग ऑन द ग्रास, राइट, तो ग्रास आपका प्राइमरी हो गया प्रोड्यूसर, ठीक है, उसने अपना फूड बनाया, इट इज ग्रोइंग इन अ मास, ठीक है, और उस पे फीड कर रहा है आपका कार्निवोरस, जो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, और वो की हर्बीवोरस है, वो दूसरे सेकेंडरी किसी भी एनिमल को नहीं खा रहा है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, उसको हम प्राइमरी में रखेंगे। जो फर्स्ट है, दोज हु आर फीडिंग ऑन द हर्ब्स ओनली, उसको हम फर्स्ट वाले में रखेंगे। इतना सबको समझ में आया? गौतम, किरण? हाँ मैम। Okay. End of the session, I will take verbal attendance also. So be connected in the class. ठीक है? एक बार मैं क्रॉस चेक भी बाद में कर लूंगी, लेकिन मुझे क्लास में कंप्लीटली चाहिए। अगर मैं जब भी पूछूं तो अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आई विल एट दैट सेम मोमेंट आई विल स्ट्रक द नेम एंड यू आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। आई वांट फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली प्रेजेंट, बोथ द सिचुएशंस, ठीक, एंड एक्टिव ऑल्सो, कि आप अपना टाइम प्रॉपरली लर्निंग में यूटिलाइज करो इफ यू आर सिटिंग इन द क्लास, राइट। तो जब हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में हम किस किस को रख सकते हैं? जब हमने ग्रास रखा तो जस्ट एनालाइज व्हाट आर द थिंग्स दे फेड ऑन ग्रास। कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रास पे फेड करते हैं? और grasshopper, okay, mute yourself please when you are saying, just mute yourself once the thing is over, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एक ने बोला काऊ, दूसरे ने बोला गोट, गौतम ने बोला ग्रासहोपर, we will go with 3 only. I just don't want to make things complex, but हम सिंपल 3 लेके चलते हैं, ठीक है। जब हम 3 लेके चल रहे हैं तो just write down on the pen कर लो तीनों के नाम। प्राइमरी फर्स्ट इज योर ग्रास, फर्स्ट स्टेप में ग्रास, यू राइट 3 times ग्रास, 1 ग्रास, 2 ग्रास, 3 ग्रास, 3 बार लिखो ग्रास को। एवरीवन, आई वांट टू सी द 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। 1 में लिखो ग्रास, सेकंड में लिखो ग्रास, सेकंड थर्ड में लिखो ग्रास। डन। गौतम दिखाओ, सुषमा, इट्स नॉट विजिबल बट ओके फाइन। ग्रास से आप एरो करो। आपने सेकेंड वाले स्ट्रेटा में आपने क्या बोला? प्राइमरी कंज्यूमर 3 आपने बताए, एक काउ, एक गोट और एक ग्रासहोपर। तीनों ग्रासेस के सामने एक ग्रास के सामने एक मेंशन करो। एक ग्रास के सामने ग्रासहोपर, दूसरे ग्रास के सामने काउ, तीसरे ग्रास के सामने गोट।
डन। मैम एक काऊ, एक गोट और एक ग्रास होपर, जैसे सुषमा गौतम ने बोला ग्रास होपर, वी विल टेक 3 ओनली, ठीक है, जो आपके ही आंसर्स थे, ठीक है, डन। अब हम आते हैं, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। अब हम आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर पे। दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल। आप अगर ये बेसलाइन समझोगे तो आपको हर इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। फिर हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे, गॉट द पॉइंट। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा? किरण आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। तो जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोल रहे हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच फेड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, क्योंकि वो सेकेंड लेवल पे खा रहे हैं, राइट। तो काऊ को कौन खा सकता है? टाइगर, टाइगर, देन ईगल मैम, eagle will come, but eagle will come in a later stage, I will tell you why, ठीक है। और eagle भी साइड में कहीं डिस्टेंस में लिख के रखना, डिस्टेंस में तुम आपने सुमन ने बोला, प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज, ओके थैंक यू। सो जब हम ईगल आपने बोला सुमन, तो पेज के किसी एक कोने में आप किसी भी एक जगह पे अदर देन दिस लाइन आप किसी एक जगह पे ईगल भी मेंशन करके रख दो, क्योंकि हम आएंगे उस पे भी, क्यों, व्हाई आई एम सेइंग दैट, ओके ओके। नेक्स्ट सुषमा, काऊ के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं मैम ह्यूमन। काऊ के प्रोडक्ट को, आई एम सेइंग डायरेक्ट एनिमल फीडिंग पे, there is a difference between cow product, got the point? Yes ma'am. Yes, then Nisha, I want the screen to be on, all of you please, ठीक है। खुशबू, गोट को कौन कंज्यूम कर सकता है? Who can consume? Human, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो सबके सामने आप एरो करके यू कैन मेंशन इट, सबके सामने, ठीक है। ह्यूमन कैन कंज्यूम, ह्यूमन कंजप्शन में आते हैं, ठीक है। अब ग्रास होपर के सामने, ग्रास होपर को कौन खा सकता है? फ्रॉग मैम। वेरी गुड, फ्रॉग। ग्रास होपर के सामने फ्रॉग लिखो, ठीक है। अब फ्रॉग के आगे इट कैन गो विथ स्नेक, यस और नो? फ्रॉग के आगे स्नेक भी जा सकता है, ठीक है। अब इस चीज को एनालाइज करो, वी विल कम बैक विद दिस, ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे रखो, इस पे हम कुछ और चीजें डिस्कस करने के बाद वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन, कि मैंने इसे क्यों राइट अप में बोला है, ठीक है, कि हमें लिखने के लिए क्यों बोला है। जब हम आगे डिस्कशन करेंगे तो इट विल कम, ओके। तो अब नेक्स्ट आपका आता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया। अब जब प्राइमरी कंज्यूमर्स है आपके पास, सेकेंडरी कंज्यूमर है और टर्शियरी कंज्यूमर्स है, ठीक है, यू हैव अ डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। अब जब डिफरेंट लेवल्स है तो आपने नीचे देखा होगा एक स्ट्रेट लाइन बने हैं सारे। व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन प्लीज? खुशबू, विल यू से? मैम काइंडली रिपीटिंग प्लीज। आपने जो लाइंस लिखे हैं आप उस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा है आपने? मैम ग्रास, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ग्रास ऊपर, देन उसके बाद फ्रॉग, स्नैक, मतलब एक, तो ये जो फर्स्ट आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, इट इज, उसके नीचे लिख लो ट्रॉपिकल लेवल 1, दूसरे के नीचे ट्रॉपिक लेवल 2, थर्ड के नीचे ट्रॉपिक लेवल 3।
तो यू हैव अ डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स, राइट? समझ में आया निशा? Yes, ma'am. प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के नीचे इट इज द ट्रॉपिकल लेवल 1, राइट? सेकेंड वन इज द ट्रॉपिकल लेवल 2, सेकेंड वन. फ्रॉग, ग्रास ओपर इज द ट्रॉपिकल लेवल 2, ठीक है. जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल लेवल 2 पे आ गए, जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो आके ट्रॉपिकल लेवल 3, और जो टर्शियरी है वो ट्रॉपिकल लेवल 4. तो आपके लेवल डिफरेंट 1 2 3 4, यू हैव डिफरेंट 4 लेवल्स, राइट? समझ में आ गया? तो आपके डिफरेंट लेवल्स आ गए, ठीक है. तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग, क्या नेचर में जब इंटरेक्शन हो रहा है तो डिफरेंट लेवल पे इंटरेक्शन हो रही है ना? जब ये एक सीरीज ऑफ फूड चेन हो रहा है, अगर एक दूसरे पे फेड करने की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है कि नेचर में ऐसा है कि आप एक दूसरे के ऊपर फेड कर रहे हो? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? Population control, ma'am. Nisha, what do you understand by that? What is the need of this interaction? If interaction is not there, is it possible for the sustainability of the life in ecosystem? क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 10 days इफ यू आर नॉट गिवन फूड, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नो. वेरी गुड. मुश्किल है ना? तो नेचर में एक तरह से बैलेंस भी बनाने के लिए, एट द सेम टाइम्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म इज फेड बाय अदर, ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल एक तरह का बैलेंस भी बनाने के लिए है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए, ठीक है. तो ये एक फूड चेन चलती है, जबकि एक सीरीज में एक स्ट्रेट लाइन में चलती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे नीचे जो लिखा है ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, तो आपने जो 3 अभी बनाए हैं, दीज 3 स्टेप्स आर द फूड चेन. मतलब आपने अभी 3 टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनाए हैं. गॉट द पॉइंट? जब एक सीरीज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन अ सीरीज जब होता है तो अब हम उसे बोलेंगे फूड चेन. गॉट द पॉइंट? इज इट अंडरस्टूड? खुशबू, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम. सुमन, किरण, यस मैम. चालू, मंजू, ऐसा कोई है जो नहीं समझ पा रहा है? एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके. सो जब हम बोल रहे हैं सीरीज में आके ट्रांसफर हो रही है एक एनर्जी की, तो क्या ये एनर्जी को हम इस सीरीज में देखो, क्या एक दूसरे को अगर हम रिप्लेस करके ये कनेक्टिविटी कहीं और से बना सकते हैं? क्या ये इन दोनों के बीच में क्रिस क्रॉस हो सकता है? आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाया है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन की जगह आप इसे क्रिस क्रॉस कर सकते हैं क्या? देखो. यस मैम. यस, ठीक है. सुमन बताइए कैसे? ग्रास है, ग्रास के बाद ग्रास शॉपर है, फिर फ्रॉग है, फ्रॉग के बाद मैम जैसे स्नैक आएगा, स्नैक के बाद ईगल आएगी, ईगल के बाद डिकम्पोजर आएगा मैडम, और दोबारा फिर ग्रास आएगा. मैम ये दोबारा से हो सकता है तो? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मैं क्या पूछ रही हूँ, आपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे यू हैव मेंशन 3 के बीच में इंटरकनेक्टिविटी कौन सी आ रही दिख रही है आपको? कि ये इस लाइन पे तो स्ट्रेट है, ये इधर से भी तो जा सकता था, नॉट द डायरेक्ट वन. कनेक्टिविटी देखो कि कहां से वो इनडायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रास लिया, गोट लिया, तो जरूरी नहीं है कि टाइगर ही जाए, वो लेपर्ड भी जा सकता है, ठीक है. Yes, लॉयन ma'am. पे भी जा सकता है. यस और नो? यस मैम. ठीक है. फ्रॉग है तो जरूरी नहीं है कि स्नेक ही ऑप्शन जाए, इट मे गो टू वल्चर डायरेक्टली ऑल्सो. तो जहां पे 3 स्ट्रेट लाइंस क्रिस क्रॉस लाइंस में भी जा सकते हैं, देन वी कैन कॉल इट एज अ फूड वेब. समझ में आ रहा है?
आपने फर्स्ट वाला जैसे काउ लिखा, काउ के बाद आपने टाइगर लिखा, काउ के बाद अगर आपने सेकेंड स्ट्रेटा में टाइगर लिखा है, ऊपर में लॉयन लिखा है, तो लॉयन की जगह आप क्रॉस में आके टाइगर पे भी जा सकते हो, क्रॉस में लॉयन पे भी जा सकते हो, या लेपर्ड में भी जा सकते हो, राइट। तो जहां पे आप आके क्रिस क्रॉस बना रहे हो, इसका मतलब है क्रिस क्रॉस इन द सेंस इट इज नॉट अ सीरीज। पहले हमने 3 सीरीज में देखा था। इज इट अंडरस्टैंड? सुमन ma'am. समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ Yes, रहा है? ma'am. Yes. Okay. Yes, तो ma'am. हम क्रॉस बना रहे हैं, देन इट मे बी वी कैन कॉल इट एज फूड वेब, ठीक है, जहां मल्टीपल फूड चेन्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं। अब नेचर में हम कभी भी, आप स्प्रेड देखते हो क्या? जरूरी तो ऐसा कभी भी नहीं है कि वो फ्रॉग ही खाए, वो रैट को भी खा सकते हैं, स्नेक। अगर आपने वहां रैट भी बनाया है, चेन पे आपने रैट लिखा है, तो इट मे कम टू द रैट ऑल्सो, इट मे गो विद द फ्रॉग ऑल्सो। तो जब एक सीरीज में नहीं हो रही है, क्रिस क्रॉस आ रहा है, तो फूड वेब। नेचर में आप फूड चेन कम देखते हो, फूड वेब ज्यादा देखते हो, ठीक है। क्यों फूड वेब ज्यादा देखते हो? क्योंकि नेचर में एक बैलेंस बनाने के लिए फूड वेब बहुत जरूरी है। गॉट द पॉइंट गौतम? समझ में आया नहीं? ओके ओके। सो जब इकोसिस्टम हम बोल रहे हैं, तो इकोसिस्टम छोटा सा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। यू कैन नॉट से कि छोटा है तो वो इकोसिस्टम नहीं हो सकता। आप सपोज एक एक्वेरियम बना रहे हो, आपने देखा होगा जो घरों में रखते हैं, छोटा सा एक्वेरियम बनाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं म्यूजियम में देखा होगा जिसमें मछलियां रखते हैं। यू कीप द सैंड, यू कीप द पेबल्स, वहां पे स्टोन्स भी होते हैं छोटे छोटे, आके आपने उसमें अलगल भी डाल दिया, छोटे छोटे जो सी वाले आपके जो फाइटोप्लैंक्टन से आपने उसको भी डाल दिया। तो ये एक छोटा सा एक्वेरियम जो है आपका, एक छोटा सा एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। आप एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक छोटी सी जगह में, मतलब आपने फिश के लिए एक वैसा पर्यावरण बना दिया जिसमें कि वो समुंदर में जैसे रह सकते हैं, नदी में जैसे रह सकते हैं, वो आपके घर के एक कॉर्नर में, एक चैम्बर में भी वैसे रह रहे हैं। यस और नो? Yes, ma'am. तो ये जो छोटा सा इकोसिस्टम आप बना रहे हो, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना रहे हो, दैट इज एन आर्टिफिशियल बेस, जहां पे स्टोन्स भी है, पेबल्स भी है, सैंड भी है। आपने उसको फेड के लिए सी रिलेटेड जो भी उसके फूड्स है आप उसे प्रोवाइड करवा रहे हो, जो कि मतलब नेचर में, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है तो आप उसे फीड कर रहे हो। लेकिन नेचर में इटसेल्फ इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। एक तो आपका कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, मेराइन वाटर इकोसिस्टम हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। कौन कौन से टाइप है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। व्हाट आर द 2 टाइप्स? मैम काइंडली रिपीटिंग। जब हम इकोसिस्टम देख रहे हैं, आप 2 टाइप के इकोसिस्टम देखोगे। वन इज द टेरेस्ट्रियल टाइप, सेकेंड इज द एक्वेटिक टाइप, ठीक है। किरण, संतोष, ओके, साउंड क्लियर नहीं आ रहा। इज इट नॉट ऑडिबल? खुशबू, गौतम, निशा? मैम यू आर ऑडिबल, फाइनली ऑडिबल। ओके किरण, check your connectivity. Okay. Khushbu, Sanjeev. I think, let me see. Sanjeev, Kiran, Santosh. Okay. So, coming to the point, terrestrial ecosystem and second one is your aquatic ecosystem. तो हम जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इज रिलेटेड टू द लैंड। जब हम टेरेस्ट्रियल बोल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम आ रहे हैं तो हमारे पास आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। आप पैरेलली नोट करते रहो, ओके, अदरवाइज यू विल फॉरवर्ड बाय द एंड ऑफ द सेशन, यू विल फॉरगॉट कि आपने क्या पढ़ा था। तो आप पैरेलली नोट करते रहो, ठीक है। तो जब हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं तो टेरेस्ट्रियल में कौन सी है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है, तुंद्रा है इकोसिस्टम, एंड देन द लास्ट वन इज द डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है।
Ma'am, forest, grassland, and tundra, tundra. okay, then desert ecosystem. Okay, so these are the four which comes under the ecosystem of terrestrial. Okay, so these terrestrial ecosystem में कौन कौन से चार लिखा है बेटा? Terrestrial, Forest ecosystem, grassland, tundra और desert ecosystem. very good. So ये four है. तो first is when you say terrestrial, it is related to the land and the land concept. ठीक है. तो जब land related जा रहा है, ठीक है. तो land में हमने forest ecosystem देखा. Forest where it is? Forest भी land पे होता है. Yes or no? यस मैम. Forest, that is on the land itself. ठीक है. तो forest ecosystem जब हम बोले तो forest ecosystem में क्या क्या चीजें आ सकती है? आप क्या क्या चीजें देखोगे forest के अंदर? आपके पास plants होंगे, animals भी होंगे वहां पे, right? Then it comes to the decomposers. दोनों चीजें होंगे. Decomposers part भी होगा. So ये सारी चीजें आपके किस में आएंगे? टेरेस्ट्रियल पार्ट पे. ठीक है. तो इनका ही इंटरेक्शन आप देखोगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में. व्हेन यू आर गोइंग टू द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल वी विल टेक अ सिंपल लाइक ट्री है. एक प्लांट हो या ट्री हो, दैट इज फेड बाय फॉर एग्जांपल गोट और अ शीप. उसको फेड कर रहा है आपका लॉयन या एलिफेंट. अगर एलिफेंट जा रहा है तो लॉयन हो जाएगा टर्शरी. तो डायरेक्ट आप नहीं खा सकते हो. यहाँ पे अगर हमने बीच में एलिफेंट ले आए तो एलिफेंट किसको खाएगा? प्लांट को डायरेक्ट खाएगा. यस यस और नो? इट विल बी डायरेक्टली फेडिंग ऑन द प्लांट इटसेल्फ, राइट? तो चेन जब बना रहे हो तो हमने जब फेड फूड वेब बोला है तो यू हैव टू थिंक दैट फूड वेब इज इंटरकनेक्टेड. इट इज नॉट द डायरेक्ट वन. तो विच इज कार्निवोरस एनिमल, विच इज हर्बीवोरस एनिमल? कौन से एनिमल्स जो है पेड़ पौधों पे फीड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तभी आप स्ट्रेटा में उसे बराबर रख सकते हो. ठीक है. कौन कौन से एनिमल्स को खाते हैं? जो एनिमल्स को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, दैट विल कम अंडर द सेकेंडरी कंज्यूमर. दोज हु आर फ्लैश बेस्ड. ये नहीं कि गाय से दूध ले लिया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर में नहीं आएगा. यहाँ पे दोज हु आर टेकिंग मीट ऑन द फ्लैश पार्ट में अगर हम जा रहा है, ठीक है, फ्लैश पार्ट पे जा रहा है या डायरेक्टली दे आर कंज्यूमिंग इट. ठीक है. तो वी आर मोर एम्फसाइजिंग ऑन द डायरेक्ट पार्ट. ओके. तो फूड की चेन जा रही है. ठीक है. तो यहाँ पे जब फूड की चेन जाती है तो एनर्जी जो कंजप्शन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो है 10% ऑफ द फर्स्ट वन. तो हर लेवल में 10% लॉ लगता है which indicates the energy transfer from one tropical level to the second tropical level is always 10% of the whole amount which is consumed by the particular organisms. तो 10% लॉ लगता है for the transfer of energy. For example, अगर ये नहीं होता तो हम, अगर आप 20 years के हो तो for last 20 years you are taken almost tons of the food, right? बट हम उसमें से अपने एनर्जी कंजप्शन के लिए, अपनी डेली रूटीन के लिए, फॉर द वॉकिंग, फॉर द पर्पस, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स, द एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड, राइट? एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑल्सो. तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज्ड एनर्जी, राइट? जो आपका एक्चुअल BMI वेट है, जो भी है. ठीक है. तो रेस्ट इज लॉस्ट, वेस्ट के फॉर्म पे निकल जाता है या फिर वो रहता नहीं है. तो सस्टेनेबिलिटी जो है यहाँ पे सिर्फ 20% होती है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखेंगे तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मेजर रोल क्या है हमारे इकोसिस्टम में? निशा, पेड़ों का क्या इंपॉर्टेंस होगा? फॉरेस्ट जो है हमारा ग्लोबल लेवल पे, व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द ग्लोबल लेवल? मैम पेड़ ही नहीं होंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता.
पेड़ ही नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, दैट इज गुड। दैट मीन्स समवेयर प्लांट्स, जब फॉरेस्ट जो डेंस होती है, जब 80% 90% बायोडाइवर्सिटी होती है, जो ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे नेचर में, राइट? कि उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसी होगी, नेचर उस एनवायरनमेंट में किस तरह के प्लांट्स सस्टेन कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, राइट? तो अगर आप देखोगे कि टेम्परेचर है, ठीक है, तो बहुत बड़ा टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है व्हेन इट कम्स विद द फॉरेस्ट, ठीक है। अदरवाइज अगर फॉरेस्ट नहीं होगी तो जितना सनलाइट आ रहा है तो डेफिनेटली अर्थ विल गेट हीट अप वेरी इजीली, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता रहता है, वाटर आके इवोपरेट होती रहती है प्लांट से, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट मेंटेनेंस में आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्पफुल करते हैं। दूसरा, कार्बन श्रिंक, जो कि एज अ एनिमल्स पार्ट, जितने भी एनिमल किंगडम में एनिमल्स है, ठीक है, वो ह्यूमन हो या दूसरे एनिमल्स हो, तो सब कहीं ना कहीं कार्बन एज अ रिलीज करते रहते हैं। तो ये जो कार्बन रिलीज है उसको आके एब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन का रिवर्स जो ऑप्शन होता है, वो प्रोसेस को वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो आपका जो कार्बन सिंक है दैट इज गोइंग ऑन, राइट? तो कहीं ना कहीं इट हेल्प्स इन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज जो हो रही है उसमें काफी हेल्प करते हैं। सपोज हमने सारे पेड़ हटा दिए खुशबू, व्हाट विल हैपन? वेदर यू विल बी एबल टू मेक अ सस्टेनेबिलिटी हियर? कर सकते हो? नो मैम, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैम पेड़ से ही हमें सस्टेन, मतलब ऑक्सीजन का नेसेसरी फॉर एवरीवन। Okay. So oxygen is the major part which we get from the plant, and at the in the reverse process, suppose अगर plant oxygen हम plant से लेते पर वो carbon dioxide नहीं लेता, then in that case also what will happen? If the reverse process की कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल अगर वो नहीं ले रहा है और सिर्फ ऑक्सीजन ही दे रहा है, इन दैट केस ऑल्सो क्या ये बैलेंस बन पाता? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे अगेन इट विल लीड टू द सर्टेन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को इंक्रीज कर देता, राइट? बैलेंस जो है प्लांट्स जो है बहुत ज्यादा बना रहे हैं। सेकंड हमने देखा, डिस्कशन किया था ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मेनली जो आपका बेस होता है दैट इज ओनली द ग्रास पार्ट, राइट? तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर सस्टेन्ड इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम? जैसे ग्रास हो गया, ग्रास होपर हो गया, आपका ग्रास होपर से फिर फ्रॉग हो गया, या फिर आपका फ्रॉग रैट्स हो गए, या फिर उसमें से आके स्नेक हो गया, वल्चर हो गए, या पिकॉक हो गया। तो इट विल गो इन अ डिफरेंट इकोलॉजिकल स्टेट, राइट? ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ रहा है, कौन सा बताया था आपने? नेक्स्ट वन, Tundra, ma'am. Tundra. So tundra means it is the cold part of the ecosystem. जहाँ पे coldest होता है, coldest region होती है, we call them as a tundra region. ठीक है, जहाँ पे cold part होती है, plants will grow like those who can sustain in a low temperature or the lowest temperature. जैसे pines वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, for जहाँ पे snowfall होती है वहाँ पे coniferous type of environment होता है, वहाँ पे पेड़ तिरछे होते हैं, नोटिस किया होगा। स्नोफॉल्स मूवीज में, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हो तो मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो इट इज लाइक द स्नोफॉल्स, दोस प्लेसेस हैव कॉनिफरस टाइप ऑफ क्लाइमेट प्लांट्स जो कि इजीली आके सस्टेन कर सकते हैं लो टू द लोएस्ट टेम्परेचर और लो वाटर अवेलेबिलिटी में भी जो प्लांट सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कोल्ड रीजन वाले इकोसिस्टम में हो गया, जहां पे पोलार बियर है, या जो डिपेंड अपॉन द फूड चेन और द क्लाइमेटिक जोन्स, राइट? ठीक है, जो वहां कोल्ड एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सके। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या था? डेजर्ट मैम। डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या है? डेजर्ट इकोसिस्टम नेम से ही पता चल रहा है यहाँ का इकोसिस्टम क्या है, डेजर्ट है। तो हम किसी भी जगह को डेजर्ट कब बोलेंगे? जब वहां की सॉइल में नॉर्मल सॉइल कंपोजिशन नहीं हो रहा है और सैंड की जो क्वांटिटी है, सिलिका की क्वांटिटी है, स्लिट की क्वांटिटी और स्टोन की क्वांटिटी इज मच मोर हायर देन दैट ऑफ द नॉर्मल क्ले, और दूसरे टाइप ऑफ सॉइल्स जो है वहां कम होते हैं। तो स्ले
जो पेबल्स ज्यादा होते हैं और वहां पे जो सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सैंड पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इन वाटर इन सॉइल्स में क्या होता है, वाटर रिटेंशन एबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब जब रेतीला जगह होगा तो वहां कितनी भी बारिश हो तो वो पानी रुकता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल मिट्टी पे अगर आपने पानी डाला तो उसमें चिकनी मिट्टी में क्या हो जाता है, पीना क्या होता है, जब आपने अगर पानी दिया किसी भी मिट्टी पे, घरों में आपने कभी पानी ऑब्जर्व नहीं होता है। घरों में आपने पॉट्स लगाए होंगे कभी ना कभी, इफ इट इज अपार्टमेंट ऑल्सो, नॉर्मली प्लांट्स सब अपने पॉट्स में लगाते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लास प्लीज ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। जब आप पानी देते हो, अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो वो पानी को ऊपर ही सतह में फ्लोट होते रहती है। ठीक है, पानी अंदर की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, और अगर उस पॉट में रेतीला है, रेत ज्यादा है, तो पानी आके जैसे आपने एक ग्लास भी दिया तो वो पानी सीधा नीचे, इट विल कम डाउन, पॉट की से बाहर निकल जाता है। ठीक है, दो कंडीशन आपके पास है, एक में आपका पानी का सतह ऊपर की तरफ फ्लोट होता रहता है, दूसरा है कि पानी आप जैसे ही डाला आपने वो इट कम्स आउट फ्रॉम द सैंड। ठीक है, तो जब रेत डेजर्ट में यही प्रॉब्लम होती है कि जो वाटर है या वाटर टेबल है दैट विल गो, कि आपकी जैसे बारिश हुई तो वाटर की रिटेंशन जो है उस सॉइल में नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो वो पानी कहाँ जा रहा है, पानी अंदर जरूर जा रहा है, पर इट इज लाइक जब ये ग्लोब है कंप्लीटली तो वाटर जो है एल्टीट्यूड के हिसाब से वाटर टेबल में इनसाइड मूव करता रहता है, तो यहाँ पे जो वाटर को इंटैक्ट करके रिटेंशन करने की कैपेसिटी है वो नहीं हो पाती। तो पानी जो है पेड़ों को जो जरूरत होती है दैट इज ओनली अप टू 1 feet to 1 meter of the water which is available for the plants। ठीक है, 1 मीटर के अंदर पानी अगर अवेलेबल है तो वो पानी आके प्लांट्स नहीं ले पाते क्योंकि रूटिंग इतनी ज्यादा नहीं रहती है। आपने खेत देखा होगा, खेतों में जो प्लांट्स लगाते हैं उसे सिर्फ 1.5 feet to 2 feet की जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है सॉइल की, उतनी सॉइल जो है उससे अच्छी होनी चाहिए जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, क्योंकि रूट्स जो होते हैं उसी सतह पे रूट्स होते हैं और उसी सतह पे पानी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर उस सतह पे पानी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो वहां प्लांट सस्टेन नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे इट इज नॉट अ वन डे कि आप डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन वहां पे धीरे धीरे दो एरिया विच इज प्रोन टू डेजर्ट एंड वहां पे जो प्लांट की सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे जगह में कौन से प्लांट्स ज्यादा इजीली उगते हैं, जो जीरोफाइटिक नेचर में होते हैं। अब हम बोले जीरोफाइटिक नेचर, दैट मींस दोस प्लांट विच कैन सस्टेन इन अ लो टू लोएस्ट वाटर, बहुत ही कम पानी में वो सस्टेन करते हैं। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, नागफली देखी होगी, है ना, तो ये जो प्लांट्स है, या फिर आपने खिजड़ी देखी होगी, जो कि राजस्थान में आप मेनली आप देखोगे जितने भी प्लांट्स है, इवन जहां पे दूर दूर तक पानी नहीं है, जिस एरिया में, नॉट एवरीवेयर, नॉट जयपुर, लेकिन जैसलमेर साइड जाओगे तो जहां पे आपको पानी जहाँ डेजर्ट ज्यादा है, जहां रेत ही रेत है, तो आप वहां देखोगे जो प्लांट सस्टेन करते हैं वो कांटेदार होते हैं, जिनकी लीव्स जो है मॉडिफाइड होके थ्रोन्स फॉर्म में हो गई है। ठीक है, तो वो प्लांट्स आराम से सस्टेन करते हैं क्योंकि उन प्लांट्स में रेट ऑफ इवोपरेशन जो है, पानी ऊपर से उड़ने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम रहती है, तो वो पानी अपना बचा लेते हैं अपने एटलीस्ट 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो पानी होता है उसके लिए वो धीरे 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 मतलब अपनी बॉडी को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि उनको कम से कम पानी में भी दे कैन सर्वाइव। तो दोज प्लांट्स आर जीरोफाइटिक प्लांट्स जो कि डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। अब इन प्लांट्स को कौन खाता है? डेजर्ट में जो एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल आपका जो कैमल है, वो बहुत कांटेदार वाले चीजों को भी खा सकता है क्योंकि उसकी जो टंग होती है इट इज सो हार्ड कि उसमें वो फील नहीं, उसे वो थ्रॉन्स नहीं लगते हैं। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिज्म हु फेड ऑन दिस और जो सस्टेन करते हैं, उनकी जो फूड चेन बनेगी वो आपकी डेजर्ट इकोसिस्टम की फूड चेन है। इज इट अंडरस्टैंड? गौतम, खुशी? यस मैम। ठीक है,
नेक्स्ट कम्स, अब हमने आके कौन कौन से देखे, टेरेस्ट्रियल हो गया, देन कम्स योर एक्वेटिक। एक्वेटिक में जो है, एक्वेटिक मींस, एक्वेटिक का मतलब क्या होगा? एक्वेटिक, एक्वा मींस वाटर, ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन द वाटर पार्ट, वाटर में सस्टेन कर रहे हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पानी में जो सस्टेन कर रहे हैं उनका अगर हम इकोसिस्टम देख रहे हैं तो उस जगह पे क्या होगा, दो तरह के होंगे पानी, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है सॉल्टी वाटर और मेराइन वन। गॉट द पॉइंट? वन इज द फ्रेश वाटर एंड सेकेंड इज द मेराइन वन, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जो है, हम फ्रेश वाटर किसको बोलेंगे? जो आपके लेक में है, ठीक है, लेक हो गया, वेल हो गया, जो आके आपके पॉन्ड्स हो गए, जिसमें मीठा पानी बोल सकते हैं आप, ठीक है, रिवर हो गया, तो दिस कंसिडर एज अ फ्रेश वाटर। एंड मेराइन हम किसे बोलेंगे? मेराइन हम उसे बोलेंगे विच इज सस्टेनिंग ऑन द सी, जो समुद्र में है या समुद्र के रिलेटेड है, वी गो विद दैट इन अ मेराइन वन, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? फ्रेश वाटर एंड मेराइन वन। संजीव, टीना, मनीषा, सुषमा, रिचा, I'm not getting the answer. Sushma, Richa, Khushi, sorry, Khushbu. यस मैम, एक्वाटिक आपने समझाया, वी आर गेटिंग। Okay. Next is Manisha, Vajpayee. I just don't want that you will log in and put your camera off and you will just keep your mobile somewhere else. No. Class में हो means complete class में होना चाहिए. Date is not, data is not working. Okay. Sushma, my mic is not working. Okay. Rest. Sushant, Ashish, Kiran, किरण, समझ में आया बेटा आपको? इज इट क्लियर एक्वेटिक पार्ट? ठीक है मैम। तो जब हम आके लेक बोल रहे हैं तो लेक में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। जब आप कभी भी आके पानी या पानी के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। ट्राई टू कनेक्ट विद द रियल लाइफ टाइम। मैं जो भी चीज डिस्कस कर रही हूँ आप बियॉन्ड द टेक्स्ट पहले समझने की कोशिश कीजिए। साथ it's not only about the definition or learning, you have to connect in the real life situation, क्योंकि आप रिसर्च में कैसे चीजों को कोरिलेट करोगे। you have to understand that कि आप छोटे लेवल में नहीं जा रहे हो, आप PhD स्कॉलर हो, तो you have to develop the skills of correlating the things with the real life, और उस पे आके क्रिटिकल एनालाइज आप कैसे डेवलप करोगे। that skills you have to develop, अदरवाइज वो कोई मतलब नहीं बनता कि आपने उसे डेफिनेशन रट लिया और आपने उसमें समझाने की क्या है करके। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर रीडिंग इट, व्हाट इज द नेसेसिटी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ठीक है, तो जब हम पॉन्ड में जाते हो तो यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग कि आपने छोटे छोटे काई जैसे चीजें फ्लोट करते हुए देखा होगा पॉन्ड्स में, किसी ने नोटिस किया? यस मैम। यस मैम। अच्छा सुन, बताओ आपने क्या क्या चीजें देखी है? यस मैम, रिपीट द क्वेश्चन। यस मैम। पॉन्ड्स में आपने क्या क्या चीजें देखी है? पॉन्ड्स में मैम काई है, फिश है, फ्रॉग है, ग्रास मैम, ग्रास। ओके ओके, किरण? ग्रास देखिए और वो फ्रॉग
काई और वो छोटे छोटे पौधे भी होते हैं Okay. Okay, please mute yourself. Let me come to the point. Please mute. Please mute, Kiran. Okay, thank you. So जब हम pond ecosystem में देखते हैं, it is like you are able to see the Sachin. Okay. Okay. जब हम जी बेटा, you have to say something. Sachin, Meenakshi, Sharma. Yes, you want to say something? Okay. So coming back. जब हम एक्वेटिक बोल रहे हैं तो आपके पॉन्ड्स, लेक, सारे इकोसिस्टम जो है उसमें कोरिलेट कर रहे हैं, राइट? तो हाउ दे कनेक्ट इन अ फूड चेन, क्योंकि वहां पे भी फूड चेन चल रही है, वहां पे भी जो इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी चल रही है। तो आपने अलगी भी देखा होगा, जो ग्रीन ग्रीन आपके लेयर्स होते हैं पानी के ऊपर की तरफ में, जो बहुत स्टैग्नेंट वाटर जो होते हैं उसके आपके ऊपर की तरह सतह बन जाती है, या फिर आप इवन रनिंग वाटर भी हो, जो रिवर्स वगैरह भी हो, उसमें भी देखोगे कि छोटे 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 ग्रीन प्लांट्स, लाइक नाइदर दे आर प्लांट्स, लेकिन वो प्लांट्स भी नहीं होते, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट्स लाइक दिखते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं हम उसको, तो वो आपके पानी की सतह के नीचे की तरफ कहीं ना कहीं आपके जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें आप देखोगे ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश ग्रो हो रही है। तो इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स को ज़ूप्लैंक्टॉन्स खाते हैं, जो बहुत छोटे 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 जो एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो उसे खाते हैं, जो जिनको हम ज़ूप्लैंक्टॉन बोलते हैं। ज़ूप्लैंक्टॉन को छोटे फिशेस खाते हैं और छोटे फिशेस को बड़े फिश खाते हैं, डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द वाटर बॉडीज। ठीक है, कि वहां छोटे लेवल के, अगर फिशेस छोटे लेवल के है तो वहां पे स्वैन भी हो सकता है, राइट? क्रेन्स भी हो सकते हैं जो मछली खाते हैं, या फ्रॉक्स हो सकते हैं जो छोटे प्लैंक्टॉन्स को डायरेक्ट खाएं, फ्रॉक्स को कुछ और खाएं, जो पानी में रहने वाले जो भी एनिमल्स है, तो वो सस्टेन उस इकोसिस्टम में, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम जहां पे ये पॉन्ड प्रेजेंट है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। दूसरा होता है कि मेराइन पार्ट। अब मेराइन पार्ट में जो इकोसिस्टम है, जैसे समुंदर ले लो जो कि सॉल्टी वाटर है, मेराइन इटसेल्फ मींस जो सॉल्ट वाटर की जो कंप्लीट है। ठीक है, सी हो गया। सी में भी आपको जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही हाई लेवल में होता है। अगर किसी को देखना है तो आप इसे मतलब सी और सी के फाइटोप्लैंक्टन्स करके दे सकते हो, तो आपको क्लियर जो पिक्चर्स है, इमेजेस है, सी के अंदर के इमेजेस भी आप देख सकते हो गूगल करके। ठीक है, तो जिसने कभी समुद्र नहीं देखा हो, दोज हु आर वांट टू नो एक्चुअली वो है क्या। ठीक है, तो जब फाइटोप्लैंक्टन्स है उस पे जूप्लैंक्टन्स खाते हैं, वहां पे भी फिशर्स एंड दे हैव अ बिग फिशर्स, वेल्स हो गए, तो उसमें भी फूड चेन चलता है, राइट? गॉट द पॉइंट? तो ये आपका कौन सा इकोसिस्टम हो गया? ये हो गया आपका मेराइन इकोसिस्टम। सो आज की क्लास में हमने क्या देखा? इकोसिस्टम क्या है, एबायोटिक क्या है, बायोटिक क्या है, देन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर्स। हम नेक्स्ट क्लास में डिकम्पोजर्स वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? टुमारो ओके, ठीक है? यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम। बनाना है क्या फिर? असाइनमेंट write down what is explain ecosystem. क्लास ले रही हूँ। Okay, ओके। and whatever you have learned, kindly go through it. If you have a doubt also, we will discuss in the next class. Okay, till now what we have discussed, is it do you have any doubt? सब कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। Nisha, let me take the attendance. Shereen Williams, Anjali, Khushbu, Present, ma'am. Ayushi, Khushbu, Monica,
Yes, ma'am. Present, ma'am. Anjali. Present, ma'am. Monica. Ma'am, Anjali present. Okay. Monica. Pooja Yadav. Kiran Santosh. Kiran Santosh. Yes, ma'am. Present, ma'am. Neem Singhad. Please mute yourself. Those who are over, please. Sachin. Ma'am, Monica is also present. Monica. Okay. Ma'am, Ayushi present. Okay, present. Verma. Monica present. मैम मीनाक्षी Monica present. मैम मीनाक्षी शर्मा Ma'am, Monica Chakrabarty. Monica. Monica. Ma'am, Momita. Momita. Yes, done. Done, beta. आशीष कुमार मिश्रा मैम प्रेजेंट Ashish Kumar. आशीष कुमार मिश्रा मैम श्रियंका मिश्रा प्रेजेंट Listen, one at a time, please. मैम श्रियंका मिश्रा प्रेजेंट Get you, please. मैम मीनाक्षी शर्मा प्रेजेंट Please write on the chat box. Please write on the chat box. Mute yourself. If you- ये सब्जेक्ट आशीष कुमार मिश्रा मैम Yeah, done. Done. Over. मैम टीचर सिंह प्रेजेंट Yes, ma'am. Vijay Singh. मैम प्रियंका मिश्रा प्रेजेंट Ashish. Wait. Sushant. Present, Usha. ma'am. Khushbu. Yes, ma'am. Present. Present, ma'am. Present, Khushbu. ma'am. Priyansh. Priyank Mishra. श्रियंका मिश्रा मैम प्रेजेंट Priyanka Mishra present. Shushma. Present, ma'am. Manisha Bajpai. Ma'am, Monica is present. Manisha Bajpai. Tina Yadav. Tina Yadav. Sanjeev Kumar. Kiran Santosh. Yes, ma'am. Veena Verma. यस मैम Anyone left out? Momita. Ma'am, Momita. Okay, this is Momita. Momita done, beta. Okay. Then Ma'am, Nisha. anyone? मैम सुमन रानी मैम सुमन रानी Wait. Please, those write down on the chat box, please. मैम सुमन रानी Yes, Suman Rani. Okay, Suman Rani is over. मैम किरण मंगला Kiran Mangla. Okay. Ma'am, Meenakshi. सुशांत तिवारी Sushant Tiwari is over. Meenakshi Sharma. Meenakshi Sharma. Yeah, over. Ma'am, Nisha. Nisha. Jangid. Yes, over. Then
Anyone left? Kiran Santosh is over. Okay. Ma'am, Anjali. Anjali. Yeah, done. Then Okay, ma'am. मैम सुमन की प्रेजेंट हो गई. Suman. Yes, Suman Rani is okay. Yes, ma'am. Okay. So today's assignment is what is explain ecosystem, okay, and explain the food web. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.